दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ਵੱਲੋਂ ITI ਮਹਿਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬੈਰੀਗੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਸਾਧਵੀ ਸੌਮਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਰਸਾਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਧਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਰਿਤਮਾਨਸ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿੱਤਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਦਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਭਰਮ ਆਦਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਆਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਵਣ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। जब दिमाग से वो माया करती है तो परमात्मा स्वयं ही हमें नजदीक लगने लग जाता है। तो ऐसे ही भावों को शमन करने के लिए कथा का आगाज हुआ है और प्रभु से आप भी विनय करें कि अगर आप प्रभु हमें यहाँ पर लेकर आए हैं तो हमारी कंसंट्रेशन भी यही बनाकर रखना, हमारे मन को भी यहाँ एकाग्र रखना, क्योंकि एकाग्र का भाव है उस एक को ही अपने आगे रखना। इसलिए आज हमने भी उस प्रभु को अपने आगे रखना है, बाकी सब कुछ आप भूल जाए और पूरे मन को एकाग्र, अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए इस कथा में अपने मन को लगाएं। तो आइए कथा से पहले हम एक सुमधुर भजन करते हैं। मैं आखिरी गुरु महाराज जी के शिष्य मेरे गुरुधर स्वामी नरेश जी से कि वो अपने मधुर वाणी से एक भजन को प्रभु के चरणों में अर्पित करें और हम भी ये भजन को ध्यान सुनते हैं। बोलिए श्रीमद् रामचंद्र महाराज जी की जय श्री आपके करो जी चंद्र महावन सो जात चित्तो हो सूर्यो जाय स्रोत्राद्वाय प्राण संसाद जायत ओम चंद्र महावन सो जात चित्तो हो सूर्यो जाय स्रोत्राद्वाय प्राण संसाद श्री रामचंद्राय नमः। श्री
ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਯੁਕਤ ਆਰੋਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਬਲ ਚਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Say
प्रश्न को अपने आप से अवश्य करने चाहिए, तुम कौन हो? हमसे यदि कोई हमारा परिचय पूछे तो हम कौन हैं? क्या हम ये देह है जो माता पिता द्वारा दिया गया एक नाम है? क्या हम वो हैं? नहीं, हम वो नहीं है, अपितु हम तो ईश्वर की अंश है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम क्या हैं? हम उस ईश्वर की अंश हैं, हम उसी की संतान हैं, हम उसी से बिछड़ी हुई एक आत्मा है। इसलिए श्री राम भगवान की ये कथा हमें उसी श्री राम से मिलवाने आई है, ये हमें श्री राम को जगाने आई है, ये हमें हमसे मिलवाने आई है। ये भगवान की कथा है, इसलिए कहते हैं कि कथा दिव्य है, अलौकिक है, क्योंकि ये साधारण नहीं, ये प्रभु से मिलवाने के लिए हमारे जीवन में आती है। और इस कथा को अगर अनेकों दृष्टिकोण के द्वारा देखें तो एक भक्त का भगवान से, एक शिष्य का अपने गुरु से अटूट प्रेम और श्रद्धा की परिचायक है ये कथा। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि इस कथा को देखेंगे तो जानते हैं अनेक महात्माओं द्वारा उपदेशित जीवन के यथार्थ सत्य को हमारे समक्ष रखती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो निस्वार्थ सोच प्रदान करने वाला कोई और प्रसंग हो ही नहीं सकता रामायण के अतिरिक्त। इसलिए ये कथा हमें राजनीति का ज्ञान, हमें सांसारिक रिश्तों का ज्ञान, हमें भावनात्मक स्तर का ज्ञान, हमें अध्यात्म ज्ञान, ये सभी तरह का ज्ञान अगर कहीं एक साथ हमें प्राप्त हो सकता है तो वो प्रभु श्री राम जी की सुंदर कथा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो कहा राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। श्री राम अनंत है, उन्हें जानना दृष्टि से, बुद्धि से समझना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रभु अनंत है और उस अनंत प्रभु की कथा भी अनंत है। जितना गहरे उतरते जाएंगे, जितनी इसमें डुबकी लगाते चले जाएंगे, उतना आनंद, उतनी शांति, उतना ही रस को प्राप्त करते चले जाएंगे। ऐसी ही मेरे प्रभु की कथा और इस कथा की महिमा गाते हुए संतों ने कैसे इस कथा की महिमा का गायन किया है, आइए तुलसीदास जी के चौपाइयों के माध्यम से इस कथा की इस धारा की महिमा गाते हुए क्या कहा है, आइए साथ हम भी श्रवण करें। प्रभु का नाम ही कुछ है, बाकी तो कुछ भी नहीं। पर हमारी विडंबना देखिए कि हमें संसार ही सब कुछ लगता है, कहीं और हमारा ध्यान नहीं। जो कुछ हम देख रहे हैं बस उसी को अपने मन में बसाया हुआ है, वो ईश्वर तो हमारी यादों से भी कोसों दूर है। ये हमारी विडंबना है। लेकिन याद रखिए, कहते कि मौत के बाद जो पत्नी है वो मकान तक, जो रिश्तेदार हैं वे शमशान तक जाते हैं, जो पुत्र हैं वे अगली रात तक जाते हैं, लेकिन जो हमारे कर्म हैं वे भगवान तक जाते हैं।
इसलिए जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं, वही हमारे साथ जाएंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, उस ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि भागवत महापुराण में क्या कहा गया है? भागवत महापुराण में कहा गया है कि 100 काम छोड़कर आप स्नान कीजिए, 1000 काम छोड़कर आप भोजन कीजिए, लाखों काम छोड़कर आप दान पुण्य कीजिए, और करोड़ों काम छोड़कर आप क्या करें? प्रभु की भक्ति करें, प्रभु का स्मरण करें। लेकिन क्या होता है कि सुबह उठकर हमारा हाथ कहाँ जाता है? सबसे पहले मोबाइल में बस व्हाट्सएप चेक किया, फेसबुक चेक किया, इंस्टा चेक किया, सारी नोटिफिकेशन हम चेक करते हैं, किसका मैसेज आया है, कैसा सारा कुछ चेक करते हैं। लेकिन क्या हम अपनी आत्मा को कभी हमने चेक किया? कभी अपने मन को चेक किया है? हमारी आत्मा कितने जन्मों से वो रो रही है, तड़प रही है उस ईश्वर के लिए, लेकिन कभी हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हम किसी से भी उसका नाम पूछें तो हम कहेंगे कि हाँ ये मेरा नाम है। किसी से उसकी ऑक्यूपेशन पूछें, हाँ मैं ये जॉब करता हूँ, मेरा ये कामकाज है, मेरा ये बिजनेस है। लेकिन भक्तजनों, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? मन तो जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हम तो उस ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम सब कुछ भूल चुके हैं। कहते जब हनुमान जी ज्ञान करते या आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप सभी इस मौके पर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज हम सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की इस पावन कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। जानते हैं इस कथा का आनंद सर्वोपरि है। इस कथा का आनंद, इस कथा का नाम तो मन ऐसे है जैसे व्यक्ति के जीवन में जो पहले हमने बढ़ाना पड़ता है। व्यक्ति की दरिद्रता को दूर करने का सबसे सरल उत्तम उपाय यदि खोजे तो वो भगवान की सर्वश्रेष्ठ करता है कि भगवान को हम सभी के जीवन को लाभान्वित करने के लिए यही कारण है कि हमारी ये भारत भूमि इतनी महान है। जनता इसकी महानता के पीछे कारण क्या है? क्योंकि भारत भूमि की विशेषता इसमें नहीं है कि वो धर्म को महत्व देती है, वो धर्म को न महत्व देकर धर्म को महत्व देती है। और ये हमारे भगवान श्री राम जी की कथा भोग को नहीं, लोगों को जीवन के महत्व को समझाने होती है। उपासना के क्षेत्र में यदि हम देखें तो भगवत प्रेम का अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब तुमने हमारे विषयों में देखा किस धरती का आधुनिक अन्याय और आप बढ़ रहा है, तो तब तक मानव को पुनः धर्म की ओर अग्रसर करने के लिए, मगर पुनः आगे को धर्म से जोड़ने के लिए इस कला की प्रसार को बढ़ाने के भगवान की कथा हमें धर्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा तो देती ही है, साथ ही साथ हमारे जीवन में सत
दर्पण और दूसरा चित्रकूट। अपने दोनों को अपने जीवन में कई बार देखा होगा, दर्पण को भी देखा होगा और चित्रकूट भी देखा होगा। जानते हैं कि हमारे जीवन में भूमिका क्या रहती है? मानो जब हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं, उसे देखते हैं, तो अकस्मात हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। ये जो चित्र है, इससे अन्य चित्रकार ने कैसे बनाया और ये बनाने वाला कौन है? ये प्रश्न हमारे मन में बदलती उत्पन्न हो जाती है। भगवान की कला की तुलना इस चित्र के साथ इसीलिए की गई क्योंकि कथा भी हमारे जीवन में जिज्ञासा को उत्पन्न करती है। आप कहेंगे कैसे? ये तो एक छोटा सा बालक जिसने धीरे धीरे अपने मां के आंगन में बड़ा होता है, तो जैसे जैसे बोलना सीखता है, थोड़ा थोड़ा तो बड़ा हुआ है, उसके शरीर के साथ ही बहुत सारी जिज्ञासा भी उसके साथ शुरू हो गई है। ये क्या है? मुद्रा है। यदि आप देखें तो छोटे से बालक की जिज्ञासा में अधिक होती है। बहुत सारी जिज्ञासाएं बड़े होने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। पूरी दुनिया को जानने की, सारे संसार के ज्ञान को अर्जित करने की जिज्ञासा, ज्ञान अर्जित करने की जिज्ञासा समय के साथ साथ उत्पन्न हो रही है। लेकिन ये भगवान की कथा भी हमारे जीवन में एक जिज्ञासा को उत्पन्न करना चाहती है। जानते हो कौन सी जिज्ञासा? ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, ईश्वर को जानने की जिज्ञासा। वो सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है? तो कभी आपके मन में ऐसी जिज्ञासा का जन्म हुआ? शायद अब तक नहीं। किंतु जानते हैं इस भगवान की कथा का सबसे बड़ा लाभ, सर्वोत्तम लाभ यदि कहें तो यही है, इस पंडाल में बैठकर हमारे मन में वो प्रश्न अवश्य उत्पन्न होगा कि प्रभु कैसे देखते हैं, कहाँ रहते हैं और कौन है मेरे प्रभु? ये सारे प्रश्न इस कथा पंडाल में आकर उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, जो संतों ने की कथा की तुलना एक चित्र के साथ की गई। चित्र जानते हैं, आप चित्र के माध्यम से जिज्ञासा को पैदा करते हैं, लेकिन दर्पण जो है दूसरी उदाहरण में भी है। दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो दर्पण हमें किसी और का पक्ष नहीं दिखाता। इसका पक्ष दिखाने वाला हमारा अपना दिखता है। आपसे यदि मैं पूछूं, आप जिस तरह इस पंडाल के लिए चलने लगे होंगे तो तैयार नहीं होंगे? तैयार नहीं हो सके? बिल्कुल। अच्छी बात बताइए, दर्पण के सामने जाकर खड़े होकर अपने आप को देखा पाएंगे? अवश्य देखा होगा। क्यों? क्योंकि भले ही ईश्वर के बाहर आपको दो नेत्र पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये दो नेत्र आपको अपना अवलोकन नहीं कराते, अपने आप को नहीं दिखाते। दिखाता कौन है? दर्पण दिखाता है। इसीलिए संत कहते हैं ये ईश्वर की कथा हमारे जीवन का है निज घर तेरा। उन्होंने कहा ये कुछ प्रश्न हैं जो मनुष्य को अपने आप से अवश्य करने चाहिए। तुम कौन हो? हमसे यदि कोई हमारा परिचय पूछे तो हम कौन हैं? क्या हम ये देह हैं जो माता पिता द्वारा दिया गया एक नाम है? क्या हम वो हैं? नहीं, हम वो नहीं है, अपितु हम तो ईश्वर की अंश है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम क्या हैं? हम उस ईश्वर की अंश हैं, हम उसी की संतान हैं, हम उसी से बिछड़ी हुई एक आत्मा है। इसलिए श्री राम भगवान की ये कथा हमें उसी श्री राम से मिलवाने आई है, ये हमें श्री राम को जगाने आई है, ये हमें हमसे मिलवाने आई है। ये भगवान की कथा है। इसलिए कहते हैं कि कथा दिव्य है, अलौकिक है, क्योंकि ये साधारण नहीं, वे प्रभु से मिलवाने के लिए हमारे जीवन में आती है। और इस कथा को अगर अनेकों दृष्टिकोण के द्वारा देखें तो एक भक्त का भगवान से, एक शिष्य का अपने गुरु से अटूट प्रेम और श्रद्धा की परिचायक भी कथा।
राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि इस कथा को देखेंगे तो जानते हैं अनेक महात्माओं द्वारा उपदेशित जीवन के यथार्थ सत्य को हमारे समक्ष रखती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो निस्वार्थ सोच प्रदान करने वाला कोई और प्रसंग हो ही नहीं सकता रामायण के अतिरिक्त। इसलिए ये कथा हमें राजनीति का ज्ञान, हमें सांसारिक रिश्तों का ज्ञान, हमें भावनात्मक स्तर का ज्ञान, हमें अध्यात्म ज्ञान, ये सभी तरह का ज्ञान अगर कहीं एक साथ हमें प्राप्त हो सकता है तो वो प्रभु श्री राम जी की सुंदर कर्म के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए तो कहा राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। श्री राम अनंत है, उन्हें जानना दृष्टि से बुद्धि से समझना असंभव है, क्योंकि मेरे प्रभु अनंत है और उस अनंत प्रभु की कथा भी अनंत है। जितना गहरे उतरते जाएंगे, जितने इसमें डुबकी लगाते चले जाएंगे, उतना आनंद, उतनी शांति, उतना ही रस को प्राप्त करते चले जाएंगे। ऐसी ही मेरे प्रभु की कथा और इस कथा की महिमा गाते हुए संतों ने कैसे इस कथा की महिमा का गायन किया है, आइए तुलसीदास जी के चौपाइयों के माध्यम से इस कथा की इस धारा की महिमा गाते हुए क्या कहा है, आइए साथ हम भी श्रवण करें। सिया राम